question. First question is, name the enzyme which is added to remove the protein content from the DNA of a cell. Name the enzyme which is used to remove the protein content of the cell. मैं एक बार वापस रिपीट करना मैम, आवाज नहीं आई। Name the enzyme which is used to remove the protein content. प्रोटीन रिमूवल के लिए एंजाइम यूज जो होता है वो आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम द वर्ड या नेम द टेक्निकल टर्म विच इज यूज्ड व्हेन वी रिमूव अ पर्टिकुलर फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। नेम द टेक्निकल टर्म which is used when we extract a particular DNA fragment from the gel electrophoresis. पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को रिमूव करने के लिए जो टर्म यूज होगा कि आपने एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को निकाला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, यूज कौन सा टेक्निकल टर्म आप उसके लिए यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, नेम द सब्सटेंस which is used as a matrix in gel electrophoresis. Name the substance which is used as a matrix in gel electrophoresis. Which is used as a matrix. Matrix की तरह कौन से substance को use करते हैं? Now your fourth question. Your fourth question है, name the recognition sequence of EcoR1. Write down the recognition sequence of EcoR1. Write down the recognition sequence of EcoR1. Okay? मैं रिपीट करना मैम। Recognition sequence of EcoR1. EcoR1 की recognition sequence लिखनी है आपको. You have to write the recognition sequence of EcoR1. Okay? Then question number 5. Your fifth question is, okay. I think this time is sufficient. हो जाना चाहिए, एक ही word लिखना है. Your question number 6. Sorry, question number 5. Question 5 is, what term is given when the DNA threads are removed from the suspension? What term is given when the DNA threads are removed from the suspension? DNA threads मैंने remove की है suspension से, क्या term आप use करेंगे उसके लिए? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो मैम, आवाज नहीं आई थी इस टाइम। What term is used when we extract या when we remove the DNA from the suspension? Suspension से DNA निकाल रही हूं मैं, ऐसे धागे निकाल, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीन भी नहीं विजिबल, नो इशू, आपको सिर्फ सुनना है इस टाइम, सुनिए और करिए। रिपीट कर दो मैम। एक बार मैं 1 to 5 क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ, क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन था, यू हैव टू नेम द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव द प्रोटीन कंटेंट फ्रॉम द डीएनए। सेकंड क्वेश्चन था, name the technical term which is used when we remove a particular DNA fragment from the gel electrophoresis. Question number 3, आपको मटेरियल बताना है जिसका मैट्रिक्स बना होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, which is used as a matrix in gel electrophoresis. Next, question number 4, you have to write the recognition sequence of EcoR1. Recognition sequence of EcoR1. Question number 5. That fifth question is, आपको लिखना है technical term which is used when we remove the DNA threads from the suspension. अब इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. 5 questions have been repeated by me.
Now question number 6. Your sixth question is, who is the father of genetic engineering? Who is the father of genetic engineering? Father of genetic engineering. Okay. Now, question number 7. Name the particular enzyme, name the major enzyme which is used in PCR. Particular enzyme which is used in PCR. PCR में main enzyme जो use होता है. Enzyme which is used in PCR. Question number 8. Name the step in which the DNA primers are added on the 3' end. Name the step in which the DNA primers are added on the 3' strand in a PCR. उस step का नाम बताइए. उस पर्टिकुलर स्टेप को क्या नाम देते हैं जिसमें प्राइमर्स ऐड किए जा रहे हैं पीसीआर के अंदर? ठीक है. 6th क्वेश्चन था फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. 6th क्वेश्चन था द मेजर एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन पीसीआर. क्वेश्चन नंबर 7 था डीएनए प्राइमर्स को हम ऐड कर रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा टर्म आप यूज करते हैं उस स्टेप के लिए जिसमें प्राइमर्स को ऐड किया जाता है पीसीआर के अंदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन है आपका, नेम द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. नेम द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन endonuclease. Name the first restriction endonuclease. Now, first restriction endonuclease. You have to name the first restriction endonuclease. Now, question number 10. Question number 10 है, हाँ, name the source from where a thermostable enzyme used in PCR is extracted. Name the source of the thermostable enzyme used in PCR. जो भी एंजाइम पीसीआर में यूज किया है उसका सोर्स क्या है, उसके सोर्स का नाम लिखो. ठीक है. Now, question number 11. Your 11th question is, what are the two major principles of biotechnology? What are the two major principles of biotechnology? You have to name it only. Two major principles of biotechnology. Two major principles of biotechnology. मैम Okay. नेम लिखिंग करने हैं उनके. Only name. You have to write the names only. Rakhi, your video is off. Tanu, same thing. Keep your videos on. Question number 12. 11 क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलना. Two principles of biotechnology. The two principles of biotechnology. Now, question number 12. 12 क्वेश्चन है आपका. आपको बताना है इसके अंदर the full form of EFB. The full form of EFB. Write down the full form of EFB. Question number 13. Question number 13 है आपका. In the recognition sequence, ढंग से सुनना. In the recognition sequence of HIND2,
हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी, उल्टा भी बोलती हूँ, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंड 2, हिंड 2 के रिकॉग्निशन सीक्वेंस में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंड 2? Now question number 14. 14th question है, in the process of gel electrophoresis, ठीक है, in the process of gel electrophoresis, the separation of the fragments are on the basis of, फिर से बोलती हूँ, in the process of gel electrophoresis, the separation of fragments are on the basis of, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन होता है फ्रेगमेंट्स का वो किस बेस पे होता है? द सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ, और आपको इसमें दो बातें लिखनी है, सुन लीजिए, दो बातें होनी चाहिए, किस बेस पे हो रहा है? 2 पॉइंट्स, द सेपरेशन आर ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश, देयर आर 2 gaps, you have to fill the 2 gaps. Now question number 15th and the last question. This is the last question. Question number 15th is, name the source of eco-R1. Name the source of eco-R1. पूरा source का नाम लिखना है आपको ठीक से. Name the source of eco-R1. Restriction endonuclease है ना आपके पास, eco-R1 restriction endonuclease, उसका source आपको लिखना है. Name the source of eco-R1. All done? 15 questions. Now show me your paper. अब आपकी स्क्रीन के सामने आपका पेपर होना चाहिए. I am checking it out one by one. Keep your paper on the screen. मैं चेक कर रही हूँ आपने आंसर्स लिखे हैं, अभी लिखने वाले. अभी भी कुछ बच्चे लगे हुए हैं लिखने में. बिल्कुल पास ले आओ फोन के, so that I can see the answers have been written. ठीक है, नूरान I can see. बाकी लोग दिखाइए one by one. I am checking it out. अभी भी बच्चे लगे हुए हैं लिखने में. क्या लिखने में लगे हुए? सानिया हसीन डन. ठीक है, ध्रुवी, गीतू, प्रशांत, खुशी यादव, पुष्पम, ऋषभ, शिबा, सनिल डन. ठीक है, तनु मुझे दिखाई नहीं दे रहे आंसर्स. भावना डन. इतनी दूर से दिखाओगे तो हाँ, तनु डन. ठीक है, शाहिद, वैभव. ओके, चलो मैक्सिमम मैंने देख लिए हैं, जिनके नाम भी नहीं लिए उनके भी मैं देख चुकी हूँ. सो अंशुल एक बार दिखाओ, अंशुल एंड नूरन, शो मी योर आंसर्स. ओके डन. नूरन डन. हाँ, नूरन का तो सबसे पहले देखा था, सॉरी. ओके डन डन. चलिए, नाउ इट्स टाइम टू चेक योर आंसर्स. चेक इट वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, ताकि ये जो टेस्ट है ये थोड़ा फ्रूटफुल हो सके, और आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स देखनी है कि कौन सा टॉपिक के क्वेश्चंस है जो आप अभी भी गलत कर रहे हो, ताकि उस टॉपिक को फिर से आप रिवाइज करो और फिर से उसको कोशिश करो ठीक आंसर्स देने की. तो लेट मी टेल यू द आंसर. मैं आंसर बोलूंगी भी और लिख भी दूंगी, ताकि अगर किसी का कोई छूट जाए तो चेक कर सके. द फर्स्ट आंसर इज प्रोटीएज. प्रोटीन तोड़ने का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो एंजाइम जो हम यूज करेंगे दैट इज प्रोटीएज. प्रोटीएज इज यूज्ड. ओके, सेकंड जो हम यूज करेंगे, सेकंड है इल्यूशन. डीएनए को कट करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, दैट इज कॉल्ड इल्यूशन. थर्ड आंसर इज एग्रोस. एग्रोस का मैट्रिक्स बना होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर. फोर्थ क्वेश्चन है रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपको लिखनी थी.
GAATTC 3 प्राइम एंड 5 से शुरू होगा 3 प्राइम, यहाँ 3 यहाँ 5, ऑफ कोर्स अगेन GAATTC, और ये हमेशा G और A के बीच कट करता है। अगर आपने कटिंग वाली चीज नहीं दिखाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने ये लिखा होना चाहिए, एंड 5 और 3 भी लिखना जरूरी है। मैम अगर आपने 5 प्राइम या 3 प्राइम मेंशन नहीं किया तो कट योर हाफ मार्क्स फॉर दिस। यस मैम पुष्पम, एक बार मेरा देख लीजिए मैम, ये लिखा है। पुष्पम बोल दो। मैम इसका मैम ये रिवर्स पूरा नहीं लिख दिया लिखा। वो, ये रहा ना, एक सेकेंड, मैं पूरा लिख GAATTC दिया। और यहाँ GA 3 बार TTC कर दिया आपने, गलत हो गया पुष्पम, पूरा कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम में भी कोई नहीं मिलेगा, आप काट दो इसको, मैम आपने गड़बड़ कर दी वहां पे। मैम यस मैम इसमें 5 प्राइम से लेके GATTC, लेकिन उसके जो नीचे है ना रिवर्स वाला, वो नहीं लिखा। कोई बात नहीं, अगर आपने एक भी लिखा है तो इट्स फाइन। वैसे नहीं मत करो, फाइन काटो, मार्क्स काट लो, तभी तो याद रहेगा तुम्हें, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो दोनों स्ट्रेंड्स पे कट करता है, तो आप सीक्वेंस भी दोनों स्ट्रेंड्स पे दिखाओ ना, एक बार आप क्यों दिखाओगे? सो इस तरीके की Okay, ma'am. मिस्टेक्स, ठीक है। सो कट। फिफ्थ इज स्पूलिंग। स्पूलिंग फिफ्थ में डीएनए के थ्रेड्स को अलग निकालना। Question number 6 is Berg. Question number 7, tag polymerase. Tag polymerase. Question number 8 is annealing. Annealing. Primer side karna, that step is annealing. Question number 9, the first restriction endonuclease is HIND2. Okay. Then 10th question. 10th का जो आंसर होगा आपका, that is Thermus aquaticus. Thermus aquaticus is a bacteria. Plant नहीं है ये. Thermus aquaticus is a bacteria. Okay. Then question number 11. दो principles होते हैं, one genetic engineering और एक principle होता है इसका chemical engineering. Genetic engineering and chemical engineering. Now the question number 12. उसकी full form है European Federation of Biotechnology, EFB, European Federation of Biotechnology. Okay. Then is question number 13, 6 base pairs. ये क्वेश्चन आया भी हुआ है भाई, आप खुद सोचो HIND2 किस क्या होती है उसकी सीक्वेंस, GTC GAC, तो GTC GAC टोटल कितने हो गए 6, तो 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के बेस पे और चार्ज के बेस पे सेपरेशन होता है, ठीक है, साइज एंड चार्ज। मैं इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया गलती से। क्या लिख दिया आपने? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में होता है, बट उस पार्टिकल का तो खुद का तो चार्ज हुआ ना, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू करेक्ट, है ना। हमें तो बोर्ड की तैयारी करनी और मार्क्स काटेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका सोर्स है, इसमें मुझे उम्मीद है आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। इस्चीरिया कोलाई RY13 कंप्लीट सोर्स का नाम। आप सुन लो मार्क्स कैसे कैसे कटेंगे। मैम मेरी बात सुनो, मैं बोल देती, हाँ मैं बता रही हूँ बच्चे, लेट मी स्पीक। आप लोगों को इस्चीरिया कोलाई में पूरा इस्चीरिया लिखना जरूरी है, और इसका ई कैपिटल होना जरूरी है, इसका सी स्मॉल होना जरूरी है, दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करना जरूरी है। उसके बाद RY13 ये पूरा स्ट्रेन का नाम है, जिससे ई को R1 बना है, तो R खाली वर्ड यूज करते हैं, पर पूरे स्ट्रेन का नाम है RY13। अगर आपने इसमें से एक भी गलती की है तो आप अपना पूरा मार्क्स काटेंगे।
मैम इस्टीरिया अंडरलाइन कोलाई। नहीं की। अगर आपने अंडरलाइन नहीं की और पूरा RY13 लिखा है, बाकी सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तो हाफ मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। अंडरलाइन नहीं करने के मार्क्स तो डेफिनेटली कट होंगे। और आपने अगर खाली यहाँ R लिखा है, पूरा नहीं लिखा RY13, तो आप पूरा गलत कर लो। और सिर्फ अंडरलाइन नहीं की है तो आप हाफ मार्क्स काटो। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। और मैम वाई छोटा लिख दिया तो? वाई छोटा लिख दिया? वाई भी छोटा लिखते हो क्या तुम इसमें? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट काट लो हाफ मार्क्स। So these are मैम the 1 answer नंबर of 1 मार्क्स का था ये। सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स। तो 15 One. मार्क्स का टेस्ट हुआ आप लोगों का ये। Count your marks, then I will ask you one by one. ठीक है? आप लोग खुद से नहीं बोलेंगे, I will ask you one by one. Keep yourself muted till then. चलो शुरू करते हैं। भावना, how many marks you scored? मैम 12। 12. Okay, not bad. Dheeraj, 9. 9. Okay. Geetu, pass? मैम Yes, Vaibhav. मैम ये 10th क्लास की कोई क्लास है 12 बजे 12 बजे? हाँ है, बिल्कुल है। ओके ओके। हाँ जी। खुशी यादव, मैम 13.5। देखा 1.5 मार्क्स कटवा लिया ना। खुशी, कैसे मार्क्स आएंगे ऐसे? 95, 98 नंबर नहीं आएंगे ऐसे, बहुत मेहनत करनी है अभी। अंशुल, मैम 8 मार्क्स। ओके। अंशुल अभी थोड़ी वर्क करो। ध्रुवी, मैम 12.5। ओके, नीड टू वर्क। ओके, देन गीतू ने नहीं बताया मार्क्स। मैम 9.5। 9.5। देखो अभी तुम्हारे कितने क्या रह रही है। दिनेश, मैम 7 मार्क्स 7। 7 ओके 7 ओके ओके। नूरान, 12. 12। नूरान बहुत पीछे हो अभी भी। प्रशांत, 13. बी फास्ट। 13। ओके। प्रियंका, मैम 12। पुष्पम, मैम 13। क्या बात है, पुष्पम तो बहुत नंबर ले गया। राखी, 11.5। रौनक, 8 मार्क्स। रौनक वर्क करो अभी, बहुत मेहनत चाहिए। ऋषभ, मैम 10. ओके। शाहिद, 7। सानिल, शाहिद थोड़ा सा और, सानिल बोलो। 10.5। ओके, थोड़ा और मेहनत करो। सानिया, सानिया, I'm not able to hear you properly. 12। ओके। सानिया हसीन, विवेक, मैम 12। वैभव, 12.5 मैम। शिबा, 11.5। शिबा बहुत पीछे हो, आपसे तो मैं ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ अभी। ओके, और किसी बच्चा कोई ऐसा रह गया जिसके मार्क्स मैंने नहीं पूछे हो? तनु, मैम 13.5। ओके। सो आई थिंक जो आप लोगों की आज की स्कोरिंग रही मैक्सिमम 13.5 थी। तनु ने स्कोर किए और खुशी ने स्कोर किए, देन इज द मार्क्स 13। तो डेफिनेटली आप लोगों को आइडिया लग गया होगा फ्रॉम द 4 टॉपिक्स हम लोगों की क्या वीकनेस है। सो आप उस वीकनेस पे दोबारा वर्क करिए और आप लोगों को जहां पर भी डिफिकल्टी आ रही है मुझे बताएंगे, मैं उसको रिपीट करूंगी। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन करा के मैं आपसे शुरू करूंगी। आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप पहले पूछिए मुझसे।
Is there any confusion in any of the question, or the questions are very clear to मैम क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रिपीट करना। क्वेश्चन 8 था आपका कि जब हम पीसीआर की टेक्निक के अंदर प्राइमर्स का एडिशन कर रहे थे तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, और पीसीआर में जब प्राइमर ऐड करते हैं उसे एनेलिंग बोलते हैं। 3 टेक्निक्स थी आपके पास, ठीक है। एक था आपका 3 स्टेप्स थे, दैट इज डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। एनेलिंग इज दैट स्टेप। और कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी किसी को? नो। ओके मैम So- क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर नंबर 2 इल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बिल्कुल लास्ट स्टेप है। वहां पर लिखाया हुआ है कि जेल के अंदर फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन हो चुका एंड नाउ वी हैव टू कट दैट पर्टिकुलर फ्रेगमेंट व्हिच वी वांट। तो उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को कट करके हम अलग निकाल लें, इसी स्टेप को हम इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है खुशी? और ये इंपॉर्टेंट टर्म भी है। खुशी ने यहाँ गलती की, याद कर ले उसको अच्छे से, सब लोग अपने दिमाग में बिठा लो। इल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच कैन बी आस्क्ड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे। इवन यू शुड नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पीसीआर, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। सो अब जो बचा है उसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास में अपना, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, कुछ चीजें हैं मैंने जो आपके नोट्स में ऐड की है। एक चीज वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी नोट्स में जो मैंने ऐड किया है। छोटी छोटी लाइंस है एनसीईआरटी की जो रह जाती है, आप लोगों से स्किप हो जाती है, वो लाइंस मैंने नोट्स में ऐड की है एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट नोट्स आल्सो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू ऑल दैट थिंग्स। निशु मैम, हाँ जी मैम, मीटिंग एंड कर दो। हाँ